जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं अमन तजाब दे नाल अपना सत्संग शुरू कर रही हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੰਨਿਓ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਗਏ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾ-ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 3-4 ਵਜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਚਕਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਘਰੇ ਕਿ ਮਿਲ ਲੈਣ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਣੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
और गुरुजी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करा दियो महाराज, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सुमन आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दियो सुमन आंटी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी करते हैं कल्याण, हम सबका कल्याण करते हैं गुरु जी। और संगत जी गुरु जी सत्संग सुनवाकर हमें अपने हमारी गलतियों का भी एहसास कराते हैं ताकि हम उन गलतियों की माफ़ी मांग सकें। अभी आपने आंटी का सत्संग सुना, हमें तो याद भी नहीं रहता कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और माफ़ी ऊपर वाले से मांगी जाती है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो हमें कब माफ़ करेंगे, है ना, अपनी गलतियों के लिए। ऐसा नहीं होता कि हमने एक ही बार माफ़ी मांगी और बस माफ़ी मिल गई। ऐसे तो हर रोज़ गलतियाँ होंगी और हर रोज़ माफ़ी मांग ली जाएगी, ऐसा नहीं होता। गुरु जी लेते हैं परीक्षा और परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, है ना। हमें अपनी गलतियों की माफ़ी हमेशा मांगनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए। और संगत जी मैं सोनाटी आप सभी के सत्संग ज़्यादातर शेयर करती हूँ। बहुत सारे सत्संग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, अब जिन पर गुरु जी की कृपा होती है वो सत्संग शेयर हो जाते हैं, है ना। सभी सत्संग नहीं शेयर हो पाते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा सत्संग आते हैं उतने शेयर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3-4 घंटे के सत्संग तो शायद कोई भी नहीं सुनेगा। मुझे तो 1 घंटे के लिए भी बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं कि आंटी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब क्या करूँ संगत जी, थोड़ा टाइम तो आपको भी निकालना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब किसी शक्ति की हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस शक्ति के लिए हमें थोड़ा सा वक्त भी देना ही चाहिए। और गुरु जी सच में जब हमें सत्संग सुनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से रखा है। और दुनिया में जब लोगों को देखते हैं कि कोई किसी तरह से पीड़ित है, कोई किसी तरह से पीड़ित है, तो हमें एहसास होता है कि हम कितने तरीके में रह रहे हैं। भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा करी है, इसीलिए कहते हैं हर वक्त शुक्राने में रहो। जैसी भी कंडीशन है, ये मान के चलो कि आपसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको सुकून महसूस होगा कि आप बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो संगत जी इसीलिए हमें शुक्राना करना चाहिए। और शुक्राना केवल जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, ये तो शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन अगर हमें लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए तो हमें भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। और उस एक्स्ट्रा को करवाने के लिए गुरु जी ने ये शुक्राना सत्संग की सेवा सर्वदा भला मुझसे करवाना शुरू किया है, जो कि मैं हर महीने पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ, गुरु जी जानते हैं। और ये शुक्राना सत्संग कलेक्टिव तरीके से हो रहा है, मतलब आप सबके सहयोग से हो रहा है। आप सब जब यहाँ पर जो भी अपना छोटा मोटा सहयोग देना चाहते हैं मुझको वो देते हैं, और तब मैं उस सत्संग को अच्छे से गुरु जी के चरणों में रख पाती हूँ, कर पाती हूँ थोड़ी सी सेवा। और ये सत्संग ऐसा है संगत जी, मुझे नहीं मालूम ये मुझसे क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन जब हम काम का पूरा भार गुरु जी के चरणों में डाल देते हैं कि गुरु जी आप ही करवा रहे हो, तो बस फिर यही होता है कि कर मैं रही हूँ, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, करवा हो रहे हैं, है ना। तो ये मेरा अपना कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, लेकिन इससे आप सबको बहुत लाभ पहुंचने वाला है, ये बिल्कुल पक्की बात तय है। जब आप यहाँ पर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, और अपनी जुतियाँ जैसे बाहर छोड़ते हो तो अपना दिमाग भी वहीं बाहर छोड़ के आना है। तो इस तरह से गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, जितना तुझे सौंपा गया है तू उतना काम कर, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। तो संगत जी मैं यहाँ पर अपना छोटा सा एक कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ, और ये एक बहुत शुभ काम है, और इसको कलेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि मैं अगर सोचूंगी मैं करूँ, अकेले अकेले करूँ, तो मैं एक सत्संग या 2 सत्संग कराने के बाद शायद ठहर जाऊँगी, मतलब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब आप सब लोग मुझे थोड़ा-सा सहयोग देंगे ना, तो वो मुझको ना ऐसा होता रहेगा जैसे कोई मुझे ऐसे कह रहा है, हाँ कर, हाँ कर, हाँ कर। मतलब मुझसे आप लोग काम करवा सकते हैं, है ना? क्योंकि करवाना तो आपको ही है, जो भी आप ये सत्संग को सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये काम करती रहूँ, तो आप भी मुझे अपना एक मोटिवेशन देते रहिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये उचित कार्य है और आप सामर्थ्य रखते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा जल प्रसाद या लंगर प्रसाद की सेवा कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये सत्संग पर्सनल नहीं है, ये सबके लिए है, सर्वदा भला सत्संग है। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपने जो मुझे कार्य दिया है उसको मैं सुचारू रूप से कर सकूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप दीजिएगा। और संगत जी यदि आप यहाँ पर कुछ भी देने के लिए सामर्थ्यशाली नहीं है, है ना? कई बार तो होता है कि हम सामर्थ्य रखते हैं लेकिन हम जानबूझ के नहीं देते। वो एक अलग बात होती है, वो तो गुरुजी जाने, मैं तो इस बारे में नहीं चाहती, क्योंकि मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती। और हाँ, कहना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि गुरुजी कहलवा रहे हैं तो मैं कह रही हूँ। और यदि आप बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं दे सकती हूँ या नहीं दे सकता हूँ, तो भी आप अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग यहाँ पर ज़रूर भेजिएगा।
प्रार्थना कीजिएगा कि ये सत्संग खूब अच्छे तरीके से संपन्न हो, और आप सबके सहयोग से जब ये सत्संग होगा तो गुरु जी के चरणों में आपके सत्संग पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपकी सेवा भी पहुंचेगी, और यहाँ से फिर आपको पूरी पूरी ब्लेसिंग भी आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी गुरु जी जब आएंगे तो सच में वो उनको तो अपने आप पता है कि यहाँ पे मेरे चरणों में सेवा कहाँ कहाँ से आई है, देश से आई है या विदेश से आई है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, गुरु जी आपके लिए जो सेवा भेजी है, अब बाकी तो आपने ही देखना है, सबका कल्याण कैसे करना है वो आपने ही देखना है। तो संगत जी, गुरु जी ने जो मुझे कार्य सौंपा है मैं उसको पूरी निष्ठा से कर सकूं, बस आप अपनी ब्लेसिंग और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, और यहाँ पर आप अपने सत्संग जो शुक्राना के भेजते हैं वो भेजते रहिएगा। और संगत जी, आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें अपनी मेन इंपॉर्टेंट बात को ही आप कहिएगा, शॉर्ट में बताइएगा, ताकि जो संगत परिवार यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए बैठा है उनको सत्संग सुनने को मिले, है ना। केवल और केवल शुक्राना करना है तो आप गुरु जी के स्वरूप के आगे शुक्राना कीजिएगा, क्योंकि शुक्राना शुक्राना के सत्संग मेरे पास बहुत सारे आते हैं, और उसमें से फिर मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं इनको बार बार कैसे बताऊं कि यहाँ पर गुरु जी आपको अगर शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं तो गुरु जी ने आपका कोई कष्ट काटा है, आपकी कोई अरदास पूरी की है, तो आपको उस बात का शुक्राना करना है और उस बात के बारे में सारे संगत परिवार को बताना है, उस घटना का छोटा सा वर्णन करना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं संगत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी निराश नहीं होना है, हारना नहीं है। गुरु जी को हमने थामे रखना है, हमने थामे रखना है। हम नहीं थाम रहे, थामना तो उन्होंने ही है, लेकिन हमें अपना उत्साह कम नहीं करना है, एक दूसरे की टांग खींचने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ना। क्योंकि कुछ लोग तो इसी बात में ही लगे रहते हैं कि ये काम ये क्यों कर रहे हैं, ये काम ये क्यों कर रहे हैं। संगत जी, अगर हम अपनी एनर्जी इस बात में लगाएंगे कि ये काम ये क्यों कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। क्योंकि अगर कोई काम किसी से करवाया जा रहा है ना, सपोज मैं ये सत्संग कर रही हूँ तो ये काम मुझसे ऊपर वाला करवा रहे हैं, तो यदि इसमें कोई भी इंसान ये सोचे कि ये तो आंटी कर रही हैं, गलत कर रही हैं, सही कर रही है, तो इसका निर्णय आप ऊपर वालों पे छोड़ दो ना, है ना। अगर उन्होंने मुझे ये कहा, ये मौका मुझे दिया है, तभी मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी कितने सत्संग करवाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता, है ना। कितने सत्संग मैं कर पाऊंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि करवाने वाले फिर से मैं कहती हूँ गुरु जी हैं। अगर वो मुझे कहेंगे नेक्स्ट में करना है तो हो पाएगा, यदि वो कहेंगे नहीं करना है तो नहीं हो पाएगा। अब इसका डिसीजन कैसे होगा कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, गुरु जी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो वो भी, क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं वो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे बता देंगे, है ना। क्योंकि हम और आप मिलकर ही, जैसे अभी आप सुनते हैं ना कई सारे सत्संग कि ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, तो हम और आप मिलकर ही ये तय करते हैं कि ये काम गलत है कि सही है। इसी संसार में सुर और असुर दोनों तरह की शक्तियां विराजमान है। कुछ लोगों के अंदर सुर है, कुछ लोगों के अंदर असुर बैठे हैं, है ना। तो जो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं ना, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है ना। और जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जो तुम्हारे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा वो तुम्हें देख के खुश होते हैं। आपको उनकी आंखों से पता चल जाएगा कि वो जब आपके सामने खड़े हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं कि हमें किस निगाह से देख रहे हैं। कई बार तो हमने कोई अचीवमेंट ली होती है और सामने वाला हमें बधाई दे रहा होता है, लेकिन वो मुंह से बधाई दे रहा होता है और अंदर ही अंदर वो फूक रहा होता है। तो ऐसे लोगों का एहसास भी, क्योंकि जो हमारी छठी इंद्रिय है ना, वो बता देती है, सिक्स सेंस, कि ये हमसे जल रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के हाथ का खाना पीने में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किसके साथ जा रहे हो इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सावधानियाँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक अपना काम करता है, लेकिन हमें एक प्रोटेक्शन लेना होता है, वो प्रोटेक्शन ही है ये सत्संग। जब हम सत्संग करते हैं तो हमें मिलती है एक शील्ड, प्रोटेक्शन की शील्ड मिल जाती है संगत जी। क्योंकि हम, गुरु जी तो हम सबके साथ हैं, हमेशा हैं, लेकिन इसमें भी अंतर आ जाता है कि हम अपना वक्त कितना ज़्यादा देते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा कर पाते हैं, अपने प्रयास हमारे कितने ज़्यादा हैं। तो वो प्रयास हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, इसके लिए भी हमें ब्लेसिंग चाहिए होती है कि हम उस कार्य को कर पाएँ, है ना। हमारे बस का खुद कुछ नहीं होता। ऊपर वाले से जब हम माँगते हैं ना कि हमसे कुछ एक्स्ट्रा करवाओ, तब हमें ऊपर वाला सामर्थ्य देता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। मैं तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मुझे गुरु जी ने अगर इतना सौभाग्य दिया है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाऊँ, है ना। आप सबके लिए भी एक बहुत ही अवसर है कि आप यहाँ पे एक कलेक्टिव एनर्जी को एक्टिवेट करके प्राप्त कर सकते हैं पुण्य लाभ। हाँ जी संगत जी, जब हम इकट्ठे होकर कोई कार्य करते हैं तो उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देती है ये ऊर्जाएं, और सारी बात ये ऊर्जाओं की है। जिसको ये बातें समझ में आ जाती है ना, वो समझ जाता है। और संगत जी, मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैं पिछले बहुत लंबे समय से ऑकल्ट में विश्वास रखती हूँ, ऑकल्ट साइंस में, और पिछले बहुत लंबे समय से मैं मेडिटेशन करती चली आ रही हूँ। मुझे लगभग
10-12 साल हो चुके हैं मेडिटेशन करते करते। तो मैंने ये चीज़ को बहुत गहराई से अनुभव किया है कि कोई भी कार्य यूं ही नहीं होता जिंदगी में। एवरीथिंग इज प्लान। इत्तेफाक कुछ नहीं होता लाइफ में, सब कुछ प्लानिंग है। हम सोचते हैं कि मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ये कैसे होता है कि यूनिवर्स के पास इतना टाइम है कि वो हमारी लाइफ को मैनेज करें कि ये करना है, ये नहीं करना, ये। लेकिन शायद है, यूनिवर्स के पास इतना टाइम है, वो हमें दिशाएं दिखाते हैं, वो हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं, है ना। वो जो रास्ते हमारे लिए बंद होते हैं ना, बिल्कुल बंद होते हैं, जब हमारा पुण्य जागृत होता है ना। पुण्य जागृत से मतलब है जब हमारी नेगेटिविटी हटती है। तो पुण्य तो अपने आप में है ना। जैसे कि धूप आ रही है, धूप धूप तो आ ही रही है, वो खिड़की दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं। तो जब हमारी वो नेगेटिविटी की दीवार हटती है तो वो रोशनी अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। यही होता है पुण्य, और कुछ भी नहीं, है ना। तो आशा करती हूँ कि कुछ मेरी बात से आपको समझ में आया होगा कि ये सत्संग क्यों करवाया जा रहा है। और यदि आपको अच्छा लगता है और तो आप यहाँ पे अपना सेवा सहयोग दे सकते हैं। यदि आपको नहीं अच्छा लगता है, मेरी कोई बात आपको किसी को भी बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़कर दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जो गुरु जी ने कहलवाया वो मैंने आपसे कहा, है ना। अब बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है। और मैं तो फिर भी सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी से, गुरु जी सबका कल्याण करें। जो भी संगत परिवार के सदस्य हैं उनको गुरु जी खूब खूब ब्लेस करें, उनको भी और उनकी फैमिली को भी। जय गुरु जी। आप सत्संग सुनिएगा संगत जी, और लीजिएगा गुरु जी की ब्लेसिंग्स, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। और आज मैं आपको एक सत्संग जो ऑडियो में है, ऑडियो में तो आते ही रहते हैं, उसमें है, रिटर्न में है, ब्लैक मैजिक का है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत आते हैं और रह जाते हैं, और रिटर्न के तो मैं नहीं करती, पढ़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन आज शायद गुरु जी का आदेश है, तो वो सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का टेलीपैथी में मैसेज आया, उनको बता रहे हैं, बेटी एक औरत है जो तेरे ऊपर तेरे पति को एक साथ नहीं देख सकती, जो तेरे को तेरे पति को एक साथ नहीं देख सकती है, ये तुम दोनों को अलग करना चाहती है। ये तेरे ऊपर मारन क्रिया कर रही है, पर तू चिंता मत कर, मैंने उसका किया कराया वापस भेज दिया है, अब वो खून के आंसू रोएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, मुझे पता है वो औरत मुझे कभी भी मेरे पति के साथ नहीं देखना चाहती है। जब से मैं शादी करके आई हूँ वो चाहती थी कि ये यहाँ नहीं रहे तो अच्छा था। कई बारी मुझे उल्टा सीधा बोलकर फंसाना चाहती थी, पर मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी ने उसका पर्दाफाश कर दिया। वो 29 साल से मेरे पीछे पड़ी है। जब भी वो मुझ पर काली क्रिया करती है तो मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी हनुमान जी मुझे पहले ही उसका चेहरा दिखा देते हैं, जिससे मैं सतर्क हो जाती हूँ। ये मेरी ननद है, मेरी सासू के साथ मिलकर शुरू से साजिश करते हैं। मैंने तो शिवजी भगवान जी और माता रानी को माता रानी को बोलती हूँ, अगर मैंने इसका कुछ खाया है तो ये ठीक कर दो, नहीं तो आप ही देखो, इसको मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप ही हर जगह से बचाओ मुझे। किसी भी रूप में आकर बचा लेते हैं, मैं जानती हूँ। मेरे गुरु जी और माता रानी साथ में हनुमान जी भी आते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप गुरु जी मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी, ये इनका रिटर्न में सत्संग था जिसे मैंने आप सबको पढ़ के सुनाया है। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है जिसको आप शेयर करवाना चाहते हैं तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा, सिंगल ऑडियो में और क्लियर वॉइस में, है ना। गुरु जी करेंगे कल्याण। आप सुनते हैं आज के और सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ऐसा था कि 9 नवंबर की बात है और उससे पहले से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और गुरुजी ने मुझे मैसेज करके बताया था कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी हैं, संभल के रहना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। लेकिन यह है ना संगत जी, हम इंसान लोग ये नहीं सोच पाते कि हाँ इतनी छोटी सी चीज़ से भी इतना बड़ा कुछ हो सकता है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब ऐसा मुझे था भी नहीं कि ऐसी उम्मीद हो जाए, मतलब मेरे साथ में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी। आज जो भी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके सामने, आज ये गुरुजी की बदौलत है जो मैं बैठी हूँ जिंदा। वरना तो उस दिन मेरा सामना मेरी मौत से ही हुआ था संगत जी, मैं सही बता रही हूँ। उस दिन मैंने अपनी मौत देखी थी। हुआ था ऐसा कि मैं जा रही थी और ऑटो में बैठी थी और क्या कहते हैं, मेरे हाथ में सामान था और कंधे पे पर्स टांग रखा था और एक हाथ से दुपट्टा था, ऐसा था। मतलब जब मैं ऑटो पकड़ रही थी तो पीछे जगह नहीं थी और तो मैं पीछे एक हस्बैंड वाइफ बच्चे बैठे थे, उनका सामान रखा था। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप आगे बैठ जाओ और मुझे जल्दी हो रही थी थोड़ी सी। तो वो उन्होंने मना कर दिया भैया ने, कि बोले कि मैं सामान पकड़ रखा है, आगे बच्चे बैठे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऑटो वाला बोला कि आप आगे बैठ जाओ। और संगत जी मैंने कहा कि आगे, और फिर मैंने कहा चलो अच्छा बैठ जाती हूँ। अब संगत जी क्या ही पता थी कि ऐसे हो जाएगा। और फिर मैं उसमें आगे बैठ गई तो मेरे हाथों में भी सामान था, थैला थे और उसमें सामान था और कंधे पे मेरा पर्स भी टंगा हुआ था और एक हाथ से दुपट्टा भी पकड़े हुए थे कि कहीं नीचे ना आ जाए पहिया वहिया में। तो संगत जी पता नहीं उसने कैसे मोड़ा, क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। पता नहीं है किसी का ब्लैक मैजिक है करा हुआ या क्या, वो तो गुरुजी जाने कि क्या अनहोनी हुई मेरे साथ कि ब्लैक मैजिक है या क्या है, समझ नहीं आया मुझे। और तो जैसे ही उसने वो मोड़ा, गड्ढे में आई, पता नहीं क्या। मैं लेफ़्ट साइड बैठी थी संगत जी और मैं ऑटो से संगत जी मैं बाहर गिर गई सड़क पे। और जो मेरी हालत हुई है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी इतनी चोट आई है, इतनी चोट आई, मेरी आँख बच गई। लेफ़्ट साइड के हिस्से में ही चोट लगी मेरे, लेफ़्ट आँख के ऊपर, लेफ़्ट आँख के नीचे, फोरहेड पे और उल्टे ही हाथ पे लगी है, मुझे कोनी मोड़ते हैं। लेफ़्ट पैर पे लगी है संगत जी और सिर में मेरे गुमचोट आई, कुछ सूजन साइड में लेफ़्ट में आई है। अब तो मैं ठीक हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, बस धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो रही हूँ गुरुजी। और तो मेरे इतनी चोट आई संगत जी मैं बता नहीं सकती। और उस टाइम पे ना मैं बेहोश हो गई और संगत जी मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ याद ही नहीं मुझे। और बस सामान का मैंने रखा, सामान ऑटो वाला उतरा और उस कहीं आसपास दुकान थी डॉक्टर की, तो वो कह रहे कि डॉक्टर के पास लेके गए होंगे शायद, क्योंकि मैं तो संगत जी बस बेहोश हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम लो होता चला गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, कौन लोग मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, कौन लोग नहीं ले गए। और फिर उसने डॉक्टर ने मेरे को कब इंजेक्शन दिया, कब दवाई दी, कब पट्टी बांधी, कुछ नहीं। बस हल्की फुल्की सी बातें याद है कि डॉक्टर ने मुझसे बातें करी, कुछ याद है, कुछ याद अभी भी मुझे नहीं है। और फिर मैं वहाँ बेहोश पड़ी रही। फिर कैसे जब कब होश आया मुझे, कैसे मैं घर आई, मुझे ही पता है संगत जी। बस ये गुरुजी की खैर हो गई, गुरुजी की मेहर हो गई और बस मेरे से गलती इतनी हो गई। गुरुजी को तो वैसे मैं साथ ही लेके जाती हूँ, साथ लेके आती हूँ, कहती हूँ मैं गुरुजी से। लेकिन यह है कि मैं ब्रेसलेट गुरुजी का या कोई ब्लेसिंग मेरे साथ गुरुजी की नहीं थी, मेरी याद नहीं रही। और तो उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगूंगी कि गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना। और आपका शुक्राना इतना है गुरुजी, इतना है कि आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, उसका लख लख शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया गुरु संगत जी कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, काट दिया है, शुक्राना कर संगत जी। मैं आज अभी मेरे हाथ में भी पट्टी हो रही है और पैर में भी चोट लगी हुई है। अभी बहुत 9 तारीख से इतना टाइम हो गया, आज 28 नवंबर है और इतने दिन हो गए संगत जी। मेरे बच्चे भी मैं परेशान हो गए, और आँख में भी स्वेलिंग इतनी आ रखी थी, बस मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। बहुत परेशान हो गए बच्चे भी, मम्मी की क्या हो गया ये। बस मैं बच ही गई, गुरुजी की कृपा हो गई संगत जी, वरना तो बस क्या ही होता। फिर गुरुजी का भी कल ही मैसेज आया कि बेटा तू मेरी कोई ना कोई ब्लेसिंग अपने साथ ज़रूर रखा कर। हाँ गुरुजी, मैं आपकी ब्लेसिंग सोच ही रही थी कि हाँ, मेरे फ़ोन में से गुरुजी का स्वरूप भी था, पॉकेट स्वरूप, वो भी मेरे बेटे ने निकाल दिया था, ये ख़राब हो गया था, सही होने के लिए लेके आया था। तब से इसमें भी मेरी कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं रखा मैंने, अब कल ही रखा है इसमें गुरुजी का स्वरूप। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने बताया मुझे मैसेज के माध्यम से
टेलीपैथी के। मैं गुरुजी से बात कर रही थी, फ़ोन में ही देख रही थी। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या है। और गुरुजी उससे 9 तारीख से पहले मेरे सर में दर्द उठा था बहुत ज़ोर। मतलब दवाई खा ली मैंने, लेकिन असर हो ही नहीं रहा था, सही हो ही नहीं रही थी। मेरा सर का दर्द इतना तेज़ हो गया रात में कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। हल्का हल्का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना तेज़ हो जाएगा। दवाई खाने के बाद भी मेरा ठीक नहीं हुआ था संगत जी। और मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो परेशान हो रही थी। बच्चे कह रहे मम्मी तुम्हारा तो चेहरा भी बिल्कुल लाल लाल हो गया था। बाद में बताया बच्चों ने, फिर एक दीदी रहती है, मैंने उनको बुलाया था कि मेरी ऐसे ऐसे हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर की दुकान भी बंद हो गई थी संगत जी। दीदी आई बेचारी, बाइक से एक लड़के को लेके आई, वो फिर मुझे लेके गई डॉक्टर के घर। अंकल ने मुझे वहाँ देखा, उनका भी लख लख शुक्राना गुरुजी, और दीदी का भी लख लख शुक्राना मैं करती हूँ कि जो वो मुझे ले गई। और संगत जी पता नहीं कि क्या ही मेरे ऊपर निगेटिविटी थी या किसी का क्या ही कराया था। मुझे लग रहा है कि किसी का कुछ कराया ही था, जो गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी हैं। तो संगत जी उस चीज़ से मैं निकली थी, थोड़ा ठीक हुई थी, दवाई ववाई खाई रही थी, फिर थोड़ा ठीक हुई थी तो मेरे साथ में यह हादसा हो गया। तो संगत जी कुछ ना कुछ तो किसी ने कुछ कराया ही है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है ज़रूर, या क्या ग्रह चाल मेरी भारी, मुझे कुछ नहीं समझ आया। लेकिन संगत जी उस दिन मेरा सामना मेरी मौत से हो गया था। और उसके बाद जो मेरे मन में ना डर बैठ गया कि मैं कह रही गुरुजी मेरे तो 2 ही बच्चे हैं और उनका कोई सहारा नहीं मेरे बनने के बाद। गुरुजी मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मैं संगत जी बहुत परेशान हो गई। मेरे गुरुजी से अरदास करी, मुझे गुरुजी प्लीज़ आप ठीक कर दो। सॉरी संगत जी। अब गुरुजी की कृपा इतनी है कि मैं गुरुजी के सामने उनके दरबार में बैठ के उनका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना है आपका, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। अगर कोई भी मेरे से गलती या भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। माफ़ कर देना गुरुजी अपनी इस बेटी को, और जिसने भी मेरे ऊपर किया कराया है या जो भी लोग मेरा बुरा चाहते हैं, प्लीज़ आप उन्हें सबक सिखाना गुरुजी। क्योंकि आजकल ऐसा टाइम नहीं है कि जो उन्हें ऐसा छोड़ा जाए, उन्हें भी सबक मिलना ज़रूरी है। मैं हूँ आपकी संगत है, और भी कोई है जो लोग बुरा कर रहे हैं एक दूसरे का, तो गुरुजी वो कैसे इंसान है, क्यों इतना जेलस फील होते हैं संगत जी, मुझे समझ नहीं आता। बस गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ उन लोगों को भी सबक ज़रूर सिखाना, उन्हें उनके कर्मों का फल आप ज़रूर देना। बस आपने मुझे मेरे बच्चों के नसीब से बचाया गुरुजी, इसका लख लख शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ बस आपने नया जीवन दान दिया, बस गुरुजी से बनाए रखना मैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे मरने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। कोई भी नहीं, आपको पता है कि मैं अपने अंकल से अलग रहती हूँ और बच्चों को पालती हूँ, जॉब करती हूँ। बस गुरुजी मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है गुरुजी। प्लीज़ आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, आप ही संभालोगे हमें। जो भी संकट है, संकट को डर हुआ तभी तो मैं बच गई गुरुजी, वरना तो किसी ने कितना बुरा करा होगा मेरे ऊपर कि मुझे तो मारने की कोशिश की गई। और इतना बुरा बुरा लोग कर रहे हैं कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संगत जी आपकी संगत थी तो मैं गुरुजी, आपने बचाया मुझे, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी। लेकिन ऐसे लोगों को सबक ज़रूर मिलना चाहिए गुरुजी, आप उनके कर्मों का फल उन्हें ज़रूर देना गुरुजी। मैं सच्चे दिल से आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। और मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, बस मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए संगत जी। क्योंकि अभी भी मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का, देखिए संगत जी मेरा सिर भी अभी भारी हो गया, मैं ज़्यादा प्रेशर अपने सर में अभी डाल भी नहीं सकती। बस गुरुजी का आदेश हो रहा था कि शुक्राना कर, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कितना। मैं गुरुजी आपका करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हमें अपने बनाने का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। बस गुरुजी आप आगे संभाल लेना सब कुछ, आप देखना, आपके ऊपर हूँ मैं, आपके भरोसे अपने अपने बच्चों को छोड़ा है गुरुजी। बस जैसे मेरा संकट काटा वैसे ही आप सबके संकट काटना गुरुजी, अपनी संगत का भला करना, जो आपकी संगत है वो भी उनका भी करना, जो नहीं है उनका भी भला करना, सबके दुख दूर करना गुरुजी। और आप अपना भी ख्याल रखना गुरुजी, ठंड बहुत हो रही है, कपड़े पा के रहना गुरुजी, अपना ध्यान रखना गुरु का। और लख लख शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये संध्या वेले का सत्संग है 25/11/2025 का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की लाडली बेटी सुमन शहादे से बोल रही हूँ। आज सुबह ही मैंने सत्संग में सुना कि बचपन में मैं की हुई गलतियाँ भी माड़ेपन में आती हैं, लेकिन मेरी जो गलती है वो बचपन की तो नहीं है, किशोरावस्था की है। ये बात 1993-94 की होगी, जब मैं 11th या 12th में पढ़ती थी।
तब किराए पर वीसीआर चलते थे। तब हम एक रात में 4-4 फिल्में एक साथ में देखा करते थे, क्योंकि अगले दिन वीसीआर वापस देना होता था। ऐसे ही एक बार हम वीसीआर पर फिल्में देख रहे थे कि मन हुआ चाय पीने का। तब मैं चाय बनाने रसोई में चली गई। तब रात को तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने रसोई की खिड़की बंद करने की सोची। मैं खिड़की बंद करने के लिए गई ही थी कि तभी वहाँ पर बंद करते ही छिपकली आ गई और खिड़की बंद करते समय छिपकली की मौत हो गई। उस छिपकली का खुला हुआ मुंह देखकर मैं बहुत डर गई और मुझे रात को सपने में ऐसा लगता कि मुझे खुला हुआ मुंह लेकर के वो छिपकली खाने के लिए आ रही है मेरे को। संगत जी, इतना डरती थी मैं, रात भर सो नहीं पाती थी, इतना मुझे डर लगता था। उस समय मैंने कई दिनों तक सही से नींद भी नहीं ली और जब भी मैं सोती था मुझे यही सपना आता, रोज़ मुझे यही सपना आता कि छिपकली मेरे ऊपर मुंह फाड़े मेरी तरफ आ रही है मुझे खाने के लिए। मैं इतना डर गई। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हो गया। फिर मेरी मम्मी ने कहा तो इसमें डरने वाली क्या बात है, डर मत। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि जब भी तुझे जब ये तुझे अब ये ऐसा दिखाई दे ना, तो सुबह उठ करके चप्पल लेकर के उस छिपकली का नाम लेकर के उसे कई बार चप्पल मारियो। और मैंने ऐसा ही किया अपनी मम्मी के कहने से। संगत जी, वो छिपकली तो दिखना बंद हो गई मुझे। फिर मैंने कभी नहीं देखा उस छिपकली को। लेकिन आज जब सत्संग में मैंने ये सुना, उन्होंने भी कुछ ऐसे एक कीड़े को ऐसे ही बचपन में ही, जैसे मैंने बताया इतनी ही उम्र पर एक कीड़े को उन्होंने उनके पंख वंख तोड़ दिए, वो सब कर दिए। तो वो उनको आगे बढ़ने में, उनको तरक्की के रास्ते में अटकलें लटका रहा था, वो अटकलें कर रहा था। तो ऐसे ही फिर उन्होंने कहा ये संकेत है, सत्संग कर। फिर मुझे भी ध्यान आया कि ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे हाथों भी एक छिपकली मरी है। संगत जी, मैं गलती से वो ऐसा हुआ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उस छिपकली को मैं मार दूं। अचानक ही वो छिपकली खिड़की के बीच में आ गई और गलती से ऐसा हो गया। मैं भोलेनाथ से, गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, बार बार माफ़ी मांगती हूँ उस किए गए अपने माड़े कर्म की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस कर्म को करने के बाद भगवान के आगे। मैंने जो किया गलती से किया, अनजाने में हुई गलतियाँ तो भगवान माफ़ कर देता है। मैं भी भगवान से यही चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें। संगत जी, अब मुझे इतना रियलाइज़ हो रहा है उस बात के लिए। तब तो मैं भूल गई उस बात को करके कि जो हुआ, मेरी मम्मी ने जैसा बताया मैंने कर दिया। फिर वो दिखी भी नहीं हो कभी, और वो मैंने मेरे दिमाग से ही निकल गई वो वाली बात फिर। लेकिन अब मुझे फिर याद आई है उस चीज़ की, और मैं ये सत्संग इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूँ गुरुजी से, अनजाने में की हुई। जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, गुरुदेव मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ जो भी मैंने जाने अनजाने में की हो। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलतियाँ की हैं बचपन से लेके अब तक। जो भी मैंने जाने अनजाने में जितनी भी गलतियाँ की हैं, मैं सब की माफ़ी मांगती हूँ आपसे, कान पकड़ के, माथा टेक के। गुरुदेव, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करो, मेरे सारे के सारे माड़े कर्म काट दो गुरुदेव। जो भी मैंने माड़े कर्म किए हैं सब कष्टों को काट दो गुरुदेव। आप क्योंकि अतुलित बलधामा हो, आप ही भोलेनाथ हो, आप ही हनुमान बाबा हो, आप ही सारी नेगेटिविटी को काट सकते हो गुरुजी। आपसे बढ़कर कोई नहीं है और हमारे लिए आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही भाई बहन हो, आप ही दोस्त हो, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो गुरुदेव।
मैं अब इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी सबके माड़े कर्मों को काटें, गुरु जी सबको खुशियाँ दें, सबके बिगड़े काम बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंत शुक्राना गुरुपा की कृपा से मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज 4:30 होने जा रहा है और आज शुक्रवार है और अमृत बेला है। सुबह सुबह 4:30 बज रहे हैं, अभी 2-3 मिनट बाकी है। अब मैं संगत जी में शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग सुनाने में कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, जो मैं टीवी में ऑन की हुआ शब्द लगाई हूँ। गुरबानी जी में उनका स्वरूप है। उनका मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंता अनंता गुरुपा अनंता शुक्राना पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, माँ बगलों की को शुक्राना, गोविंद को शुक्राना, सभी देवी देव को शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से मैंने अरदास किया था, गुरुपा ऐसी कृपा करो कि मेरी छोटी भाभी क्वार्टर जाने से मना कर दे, क्योंकि वो हमेशा क्वार्टर जाने के लिए मेरी माँ भाई को जिद करती थी गुरुपा। तो मैंने अरदास किया था, ऐसी कृपा करो गुरुपा क्यों ना जाए, पर थोड़ा थोड़ा अरदास पूरा कर दिया गुरुपा। मतलब मेरी भाभी ने बोला कि अब आप तो क्वार्टर नहीं जाइएगा, हमको लगता है आप नहीं जाइएगा तो आप मेरे को ऊपर एक रूम बना दीजिए। एक रूम में कंजेस्टेड लगता है, रूम तो बहुत है, 2-3-4 रूम है, पर सब जिम में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसकी भी कोई गलती नहीं है। संगत जी, मैं जानती हूँ एक लड़की को सब चीज़ की 2-2 बच्चा सामान रखने का ज़रूरत होता है। मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी सब चीज़ झेल चुकी हूँ। संगत जी गुरुपा की कृपा से टाल दिए क्वार्टर का बात। शुक्राना गुरुपा पर। संगत जी, बस मेरे भाई को मैंने गुरुपा से अरदास की, मेरे भाई को बस ऐसे काबिल बना दीजिए संगत जी, कि अपनी वाइफ का हर इच्छा पूरा कर सके, उसको उस काबिल बना दीजिए, उसका हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे मेरे गुरुपा, मेरा भाई का हाथ अभी लोन लिया हुआ है गुरुपा। आप तो जानते हैं ना गुरुपा, उसको लोन चुकाना है। अभी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो घर या एक वाशिंग मशीन भी ना ले सके अभी। बस गुरुपा की कृपा होगी ना संगत जी, तो मेरे गुरुपा मेरे भाई को इतनी कामयाबी देंगे, इतनी कामयाबी देंगे कि वो सब कुछ कर सकता है। बस गुरुपा की कृपा जरूर होगी। अब गुरुपा मेरे मायके में आ चुके हैं, अब गुरुपा मेरे घर में सब कुछ अच्छा करेंगे और आगे भी अच्छा करेंगे। संगत जी, गुरुपा ने मेरे एक अरदास पूरी की। बस संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मैं भी शादी घर में जा रही हूँ, कल मुझे मायके निकलना है टाटा। अब मुझे लाज बचाए रखना गुरुपा, कि वहाँ मुझे भाई से कभी हाथ ना फैलाना। आप तो जानते हैं संगत जी, मेरे भाई सर्विस वाला है, सर्विस का पेमेंट में पूरा घर चलाना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है। मैं अपने भाई से कभी मांग नहीं सकती हूँ। अब गुरुपा ही है, मेरी इज्जत लाज रखेंगे गुरुपा। गुरुपा अब आपको शुक्राना करती है गुरुपा। गुरुपा मालूम है शंकर जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मैं मेरे में बुराई है कि मैं कोई चीज़ भूल नहीं पाती हूँ। मुझे बार बार वो दिल दुखता है जब वो गाली याद करते हैं गुरुपा। क्यों मैं उस गाली को याद करती हूँ संगत जी? मैं सब गाली बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर गंदे गंदे गाली मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मेरे कान में गूंजता और मैं रोने लगती हूँ, बहुत रोने लगती हूँ, जबकि ये गाली मेरा कर्मा कटा रहा है। गुरुपा की कृपा से वो सब कटु बच्चे मेरे जो हस्बैंड गाली दिए वो सब मेरा कर्मा कटा रहे हैं, फिर भी मैं बेवकूफ़ हूँ, फिर भी मैं रोती हूँ। पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ गुरुपा? बस यदि मैं ये सब रोना धोना मेरा बंद करो गुरुपा। मैं बहुत ठीक थी, 18, 19, 20, 21, 22 सब ठीक थी। बस सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन मेरे लिए बहुत भयानक दिन गया, जो हम लोग का लड़ाई हुआ। पता नहीं संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, मैं मतलब यूट्यूब देखती हूँ तो उसमें हेडलाइन सत्संग में दिया जाता है कि 2 जन है जो तुम लोगों को दूर करना चाहता है। एक पड़ोसी है और एक तुम्हारे घर के ही रिलेशन में है, कोई आप तुम्हारा रिलेशन में जो तुम लोगों को दूर करना चाहता है, लड़वाना चाहता है। गुरुपा हम नहीं जानते कौन हम लोग को लड़वाना, कौन करना चाहता है। बस गुरुपा आप हो तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। जहाँ गुरुपा है, जहाँ माँ बगलामुखी मेरे गोविंद घर में है, वहाँ बुरा हो ही नहीं सकता। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा हम लोगों का लड़ाई को शांत करो गुरुपा, और उसका अहंकार को शांत करो, घमंड को चूट कर जो घमंड में रहते हैं कि उनके घमंड को भी शांत करो गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दो और उनको अपने शरण में जोड़िए गुरुपा। संगत जी बुरे नहीं है, पता नहीं संगत जी शादी के 2-3-4 साल पहले वो बहुत अच्छे थे। जब से एक लड़की के साथ जब से उनका अफेयर हुआ तब से वो गाली देना सीख गया है, कटु वचन बोलने। ये भी कहीं ना कहीं मेरे बुरे कर्मों का सजा होगा, जो मैंने बुरे कर्म किए होंगे उसी का सजा मुझे गुरुपा ने हस्बैंड के थ्रू दिलवा रहे। शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा जल्दी जल्दी मेरा कर्मा कटवा लो गुरुपा, मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना गुरुपा, और मुझे अमृत बेला मुझे बख्शना गुरुपा। मैं हमेशा अमृत बेला और आपका नाम स्मरण करूँ और आपके हाथों से मैं जीवन चलाती रहूँ संगत जी।
मुझे गुरुपा ने आज बीच में बहुत मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, पूरा बटरफ्लाई रोज़ 2 या 3-4 बटरफ्लाई तो मुझे दिखती थी, पर आज जब गुरुपा मुझसे नाराज़ होता था, एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखती है। कल मैंने गुरुपा से अरदास किया, तो गुरुपा जी आप सच में मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। तो कल एक थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए एक हल्का-सा ब्लू कलर की बटरफ्लाई मुझे दर्शन थोड़ा के लिए दर्शन दी, फिर लुप्त हो गई, नहीं दिखी। अब बीच में संगत जी मुझे इतने अच्छे-अच्छे बटरफ्लाई दर्शन दे रहे थे, मतलब गुरुपा मुझे खुश थे। अभी लगता है गुरुपा इस बेटी से नाराज़ है, इसीलिए गुरुपा मुझे उतना अच्छा दर्शन नहीं दे रहे, क्या पता कौन कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने ये दिन कटवा लिए मेरा। हस्बैंड अंकल के गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुस्सा शांत करवाओ, उनको भी उनको गलतियाँ रियलाइज़ करवाओ गुरुपा। ऐसे तो गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं किया है संगत जी में, अच्छे-अच्छा घर दिए है, अच्छे बेटे दिए, परिवार दिए है, सब सुख-सुविधा दी है संगत जी, मुझे कोई चीज़ का कमी नहीं है। बस संगत जी गुरुपा को मैं यही बोलती है, आपने मुझे सब दिया शुक्राना गुरुपा, पर मुझे अपने इंडिपेंडेंट होना पे कितना भी वो हाथ फैलाना पड़ता है। जब झगड़ा होता है तो सब बोलते हैं इससे कोई बात नहीं करी, उसके पास ना आए। संगत जी जो साधक रहता है उसको अकेला ही रहना पड़ता है, ये भगवान परीक्षा लेते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। एक साधक को निगेटिव लोगों से दूर रखते हैं। शुक्राना गुरुपा मैं समझ नहीं पाती, पर ये नादान बेटी, पगली बेटी, शैतान बेटी समझ जाए तो क्यों रोए, क्यों चिल्लाए। जिस दिन आप मुझे शांत कर दोगे गुरुपा अपने आप शांत हो जाएगी, जिस दिन आप मुझे दिव्य शक्ति के दर्शन करा दोगे गुरुपा अपने आप शांत हो जाएगी। अभी शांत आप करवाओगे गुरुपा, मेरा शांत कराएंगे, ऐसे गुरुपा मुझे सब कुछ दिया है, शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी मुझे गुरुपा ने आज गुरुपा से मैं यही अरदास करी कि यदि आज मुझसे नाराज नहीं है, मेरे माँ अपराधों को क्षमा किए तो मुझे दर्शन दीजिए, कोई रूप से मुझे संकेत दीजिए। गुरुपा मुझे मालूम है संगत जी, मैंने जब हस्बैंड अंकल को सो बुरा बोला तो मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रही हूँ, मुझे कितना बुरा लग रहा है, क्यों मैंने बोला, मैं क्यों पापी बागी बनी, मैं क्यों उसे बुरा बोला, ये सब तो गुरुपा करवा रहे हैं, मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ गुरुपा कि मैं क्यों पापी बनी, मैं क्यों उसे कटु वचन बोली, नहीं बोलना चाहिए गुरुपा, सब डिलीट कर देना। हम लोग तो नादान बच्चे हैं, हम भी हमें हस्बैंड कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग क्रोध में, हम लोग बच्चे, हम लोग आपके बच्चे हैं गुरुपा, हम दोनों को माफ़ कर दो गुरुपा, उन्हें भी माफ़ कर दो गुरुपा, प्लीज़ पापा मुझे भी माफ़ कर दो गुरुपा। हम लोगों की लड़ाई को शांत करो, कौन हम लोगों को लड़ा रहा हम नहीं जानते गुरुपा, हम लोग किसकी नज़र लगाए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे पर हम परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, गुरुपा का फॉलो नहीं, सब चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, अमृत वेला संभाल लेते हैं, उनका नाम सिमरन सब कर लेते हैं, फिर भी एक क्रोध और गंदे वर्ड आ ही जाते हैं। गुरुपा मुझे क्षमा करो, क्या करूँ गुरुपा, एक बेटी माँ भाई का गाली बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके कारण वो बहुत भयंकर रूप धारण करती है। जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी का बुरा नहीं देख सकता, उसे एक बेटी अपनी माँ भाई का बुरा नहीं सुन सकती है। गुरुपा क्षमा करना गुरुपा, नादान बेटी को सजा देना है दे दो गुरुपा, मारना है मार दो मुझे, पर मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना गुरुपा, पर मुझसे रूठना नहीं पापा। जब बेटी ही पिता ही एक बेटी से रूठ जाएगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी पापा, मुझे क्षमा करो पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, मुझे क्षमा करो, मेरे हस्बैंड को क्षमा करो गुरुपा, मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना। संगत जी गुरुपा ने मुझे साथ बहुत सब कुछ, मेरे बहुत मुझे सेहत ब्लेसिंग भी कर रहे थे, मुझे काया भी दे रहे थे, पर 2 दिन की झगड़ा में मेरे फिर चेहरे मुरझा गया संकट जी। अब संकट जी अब गुरुपा मुझसे रूठे हैं, पता नहीं रूठे हैं कि पर हाँ मैं गुरुपा से कल मैं माफ़ी मांग रही हूँ, गुरुपा मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। संकट जी गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उनके लिए शुक्राना, अच्छी सेहत दी है, अच्छी घर दी है गुरुपा ने, मेरे परिवार में सब कुछ, बस गुरुपा आप मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना। संगत जी गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भले वो मुझसे रूठे हुए हैं फिर वो ठीक हो जाएंगे, एक पिता कभी बेटी से नहीं रूठते हैं संगत जी, वो मुझे जरूर माफ़ कर देंगे, मेरे कटु वचन को माफ़ कर देंगे, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई क्षमा करना गुरुपा, और मुझसे बार बार ये गलती दोबारा ना हो गुरुपा, प्लीज मेरे से यही मेरी अरदास है गुरुपा से। जब गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया और आगे भी दे रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं शादी घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, और वहाँ भी मेरी इलाज गुरुपा ही रखेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम ले रही हूँ, यदि कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा। संगत गुरुपा मेरे मेरे सुमन आंटी का बरकत करना, उनको कभी कोई कष्ट ना हो, उन्हें हमेशा शेयर ब्लेसिंग करना, उनको हमेशा आगे बढ़ाना, संग आंटी को, सुमन आंटी को, और जो मेरे शुक्राना सत्संग उनके भी दुख काटना गुरुपा, उनको भी ब्लेसिंग करना, शेयर ब्लेसिंग करना, उनके परिवार में खुशियाँ देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुपा, आज भी जीवन दान देने का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, करोड़ों जन्मों का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंता अनंता शुक्राना गुरुपा। जय बगलामुखी माता की जय हो, गोविंद भैया की जय, हरे कृष्णा। जय गुरुजी, ये मेरा सुबह का सत्संग है, अभी 9 बज रहे हैं। गुरुजी, जैसे मेरे सिर में दर्द था, मैंने आपके जोत का तेल लगाया, वो बहुत दिनों का दर्द मेरा 2 दिनों में ठीक हो गया, और फिर मुझे बहुत अचंभा लगा। फिर मेरी गर्दन में भी दर्द था, तो मैंने बोला जब सिर का दर्द ठीक हो सकता है तो गर्दन का भी ठीक हो सकता है। फिर मैंने वो लगाया, मेरी जो गर्दन मोड़ने में तकलीफ होती थी, दाएं बाएं दिखने में तकलीफ होती थी, वो भी ठीक हो गई। गुरुजी, आपका ये चमत्कार मेरे लिए बहुत ही उपकारी रहा। और गुरुजी, मैं सब संगत को भी हाथ जोड़कर विनती
करती हूँ, जो जोत का घी जो होता है उसका जोत का घी लगाने से दुःख दूर होते हैं। संगत जी आप भी करके देखना, क्योंकि कोई भी इंसान को अगर कोई फ़ायदा होता है, दूसरों को बताए, दूसरों का भी फ़ायदा होए, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो मैं ये सत्संगत बस इसी बात के लिए कर रही हूँ। गुरुजी को बार-बार प्रणाम, उनका करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, खरबों बार शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, जमाई बाबू की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से कोटान-कोट शुक्राना। गुरुजी इसी तरह हर पल, हर समय हम लोगों के साथ रहें, संगत के साथ रहें, संगत का भी भला करें और सुमना आंटी जी का भी भला करें और उनको बहुत स्वस्थ रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करती हैं। उनको उसके लिए एनर्जी होगी तभी वो कर पाएँगी। तो सभी को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी और आप सभी का भला करते हैं और इसी तरह करते रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम करती हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में हमेशा भूल जाती हूँ आपका महामंत्र करने। तो अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय स्वामीनारायण जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमित वेला पे गुरुपा के स्वरूप के जाने बैठ के सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा, सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनकी सारी विशेष को पूरी करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को मैं आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा के उन सभी मेहर के लिए, जब वो मैं गुरुपा से ने मुझे अपने से नहीं जुड़ा था और मैं इन डायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में तो जो है वो गुरुपा ने मुझे 2023 दिसंबर 27 से अपने से जोड़ा। उससे पहले मैं गुरुपा मेरे साथ थे इतने कब से, लेकिन मुझे इसका ये एहसास नहीं था कि वो गुरु जी हैं। मैं भगवान और माता रानी का ही शुक्राना करती थी और मैं समझती थी कि वही सब कर रही हैं। तो गुरुपा और को मैं उस समय सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। वो किस किस रूप में आए और हमसे हमें गाइड करते रहे। ऐसे ही एक मेरे हस्बैंड जो मैं छोटी थी बहुत, तो मैं आई थिंक 10 ईयर्स की रही होंगी। मेरी जो बुआ है उनकी मेरी मेरी बुआ की जो बेटी है उनकी सास जो थी वो उन पर देवी आया करती थी माता रानी, और वो हमेशा काफ़ी सत्संग बताती थी। राइस जो थे वो देख कर बताती थी वो। तो एक बार वो हमारे माता रानी का मंदिर है हमारे घर के पास ही, जो है बचपन से मतलब माता रानी के घर, हमारे घर का एड्रेस ही देहरादून में बिहाइंड माता मंदिर या नियर माता मंदिर ही है एड्रेस में, और हमारा घर मंदिर के पास है, हमारा माता रानी के मंदिर के एकदम पास है। तो हमारे घर का जब भी एड्रेस होता है उसमें लिखे थे कि जो भी एड्रेस उसमें लिखते थे माता नियर माता मंदिर। तो माता रानी का मंदिर बहुत फेमस है, वो सीता माता का मंदिर है। उसके बचपन में से हमने वहीं पर अपना समय गुजारा और मैंने गुरु माता रानी के शरण में ही हम पले बड़े, और लंगर प्रसाद जो वहाँ पर लगता था वो वही सब हम खाकर बड़े हुए हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मैं कि इस तरह से उन्होंने हमें बचपन से अपने से माता रानी से जोड़ के रखा। और माता तो वो जो वो मेरी उनकी जो सास थी, मेरी बुआ की बेटी की सास, वो हमारे वहाँ बगल में माता मंदिर में माता रानी पूजने के लिए आती थी। तो माता के उसमें बहुत उनको लेट हो गई, बहुत सारी भीड़ थी, तो वो हमारे उस दिन रात को मंदिर वगैरह मतलब पूजा करने के बाद वो हमारे घर में ठहर गई। और रात को वो जब हमारे यहाँ ठहरी, तो जब हम पूजा कर रहे थे तो हम उसे घंटी बजाकर पूजा किया करते थे। हम पूजा कर रहे थे, वो भी हमारे साथ पूजा में खड़ी थी, और अचानक उन पर माता रानी आती है, उन पे देवी माता रानी आई, और वो ऐसे मतलब उन्होंने एकदम मैं भी छोटी सी खड़ी थी वहाँ पर, मैं बहुत छोटी 10-12 साल की थी। मैं वहीं पे खड़ी थी, मेरी बहन भी खड़ी थी, हम सब खड़े थे। तो वो एकदम आई, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, टीका पहना के लगाती थी वो, तो हाथ रखते बोली कि तुम्हारी ये बेटी जो है वो बहुत आगे जाएगी, और वो तुम्हारे लिए तो तुम्हें उसके लिए कोई भी रिश्ता या कुछ भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग अपने आप यहाँ पर आएँगे और उसको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। उस पे भगवान की बहुत मेहर है, और वो एक टाइम जो है वो अपने जो है इष्ट देव अपने भगवान को पालेगी। इतना इतना मतलब इसका लगा जुड़ाव होगा भगवान से, और ये उनको पालेगी और साक्षात भगवान को पालेगी, ऐसे उसने बोला। और बोलती है कि इसको इनके लिए कुछ भी मत ढूँढना, ये इनके खुद चल कर लड़का इनके घर तुम्हारे घर पे आएगा रिश्ता। तो
मेरी मम्मी और बोलने लगी ये पढ़ाई में जो है ये भी आगे करके मतलब ये जॉब करेगी, अच्छी जगह इसकी जॉब लगेगी और ये हमेशा मतलब इसका जीवन अच्छा रहेगा, ऐसे करके उसने बहुत सारी बातें बोली और जो उसने उन्हें बोली वो बातें एकदम सच हुई हैं। और जिस तरह से जो उन्होंने बोला वो एक-एक करके सत्य होता रहा। एक था कि जो अपने भगवान को पालेगी, अपने रिश्ते को साक्षात इस कलयुग में पालेगी, तो मुझे अभी एहसास होता है कि वो गुरुपा के लिए कह रही थी, शायद वो गुरुजी मुझे इस जन्म में मिल गए, है ना? तो वो मुझे अब एहसास होता है। तो इस तरह से मैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। उस दिन वो हमारे वहाँ पर घर पे ही रही और उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी भगवान की बातें हमें सुनाई। तो बहुत उनके बाद बहुत मेहर थी भगवान की। अब तो वो गुरु पाक इंस्टीट्यूशन में जा चुकी हैं, लेकिन उस वक़्त उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा को बताया। तो जय गुरु जी जो है उन आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना है। उन्हें गुरु पाक इंस्टीट्यूशन में आपके चरणों में है, उन्हें वहाँ पर खुश रखना, उन्हें हमेशा अच्छी उनकी आत्मा को शांति और ब्लेस करना। तो बहुत-बहुत शुक्राना है उनका। इस तरह से एक दिन अभी मैं लास्ट कुछ टाइम कोरोना से पहले का है 2020 में एक दिन मैं ऑफ़िस में कोरोना नहीं हुआ स्टार्ट हुआ था उस समय उसका स्टार्टिंग ही था 2019 था और 2019 में हाँ, 2019 में ऐसी नवंबर का महीना था और मैं जो है ऑफ़िस जा रही थी और ऑफ़िस में जाती हूँ पार्क से होकर जाती हूँ और पार्क में से जैसे मैं जा रही थी मेरे सर के ऊपर एक कौवा जो है वो आया और उसने मेरे सर में मेरे बाल के ऊपर मेरे सर को ऐसे मतलब बाल खींच के उड़ गया। तो जैसे उस मेरे सर पे टच की उसकी चोंच मुझे फ़ील हुई, तो मैं एकदम बोली हाँ, ये क्या हुआ? मैंने ऐसे देखा तो वो कौवा था वो उड़ गया। तो मैं तभी मैंने ये मतलब ऐसा पढ़ा था, सुना था कि अगर हमारे सर के ऊपर से कौवा छूट जाता है तो हमारे सर के ऊपर मौत का भय होता है और वो हमें अकाल मृत्यु का भय होता है और उस मतलब उसमें उसे महामृत्यु जप करना चाहिए ऐसे करके उस कष्ट से बचने के लिए अगर मृत्यु आने वाली होती है। तो मैंने ये सुनकर मैंने महामृत्यु जप स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि महामृत्यु जप जो है घर पे नहीं करते, लेकिन मैंने वो महामृत्यु जप लगातार मैं करती रही 108 से भी ज़्यादा मतलब सुबह शाम मैं महामृत्यु जप करती थी और करती रही। उसके बाद नवंबर खत्म हुआ, दिसंबर का महीना था। मतलब दिसंबर एंड था 24 दिसंबर को मेरी सिस्टर और मेरे कज़िन जो थे उन्होंने कहा कि वो हांगकांग घूमने आना चाहते हैं। तो हमने उन्हें कहा ठीक है आप क्रिसमस के टाइम पे आ जाइए। तो क्रिसमस के टाइम पर वो आ रहे वो आना चाहते थे लेकिन उनकी वाइफ़ की स्कूल की छुट्टी नहीं थी। तो उन्होंने कहा हम 1 जनवरी को आएँगे। तो मेरी सिस्टर भी मैंने कहा था तुम भी उनके साथ आ जाना लेकिन मेरी सिस्टर को मैंने कहा कि वो तो 1 को आएँगे आप पहले आ जाओ। तो मेरी क्रिसमस की छुट्टी होगी हम साथ में गुज़ारेंगे। मेरी सिस्टर आई और वो उनसे पहले एक मतलब 2-4 दिन पहले 4-5 दिन पहले आ गई और जिस दिन वाइफ़ दिन सैटरडे था और मॉर्निंग आई और हमने उसको सब कुछ मिले थोड़ी देर आराम करके हमने बोला चलो हम ना एक घूमने चलते हैं। मैं उसे एक जगह घूमने के लेके गई। हम काफ़ी अच्छा घूमे घाम के वापस आए। फिर अगले दिन हमें मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा चलो हम बीच चलते हैं। वहाँ हम बीच गए। बीच से होकर जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत थोड़ा टाइम था। तो मैंने कहा अभी टाइम है और सैटरडे है तो ऐसे करते हैं हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को घर जाने को कह दिया और हम दोनों के दोनों हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं था मार्केट। वहाँ पर हम शॉपिंग के लिए चले गए। जैसे हम शॉपिंग के लिए जो है वहाँ से जा रहे थे हम वापस शॉपिंग के लिए वैसे ही मेरा पैर कैसे हुआ मुझे पता नहीं चला। नॉर्मल रोड थी छोटा-सा एक स्ट्रीट छोटी-सी थी उसको हमें क्रॉस करना था। कोई सिग्नल नहीं था मैं क्रॉस कर रही थी और मेरा पैर पता नहीं कैसे मैं नीचे गिरी और मैं जहाँ पर गिरी वहाँ पर ड्रेनेज था। वहाँ उसमें लोहे का बना हुआ लगा हुआ था जहाँ के पानी रुकता है वो बने होते हैं ना रोड पे वो था। और मैं उसके ऊपर ज़ोर से गिरी और मैंने अपना हाथ टेक लिया। एक लेफ्ट हैंड हाथ मैंने टेका और फिर भी मेरा मुँह और जो है सब ज़मीन पर लगा जिससे कि मेरे दाँत हिलने लगे और मेरे सर से ब्लड आने लगा। और पैरों से भी चोट लगी और मैं मतलब उठ नहीं सकी। मोबाइल जाकर दूर गिर गया और टूट गया बुरी तरह से। मेरी सिस्टर भी देखती रह गई। उसके पास कोई नंबर नहीं था क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास था। उसके पास इंडिया का ही नंबर था, यहाँ का कोई नंबर नहीं था। तो उसने फिर उस दिन आई थी। तो मैंने उठकर मैंने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया। मैं उठी और वहाँ पर जो है कोई टैक्सी स्टैंड भी वहाँ पर नहीं था और मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं बना सकूँ। तो मैंने एकदम आगे गई और धीरे-धीरे मैंने हिम्मत माँगी भगवान से और मैं बड़ी मुश्किल से धीरे-धीरे खड़ी हुई और हम टैक्सी के स्टैंड के पास किसी तरह से रोड पर पहुँच गए। हमने टैक्सी बुलाई और हम सीधे घर पर मैंने घर पर जाने को उसे बोला और वो हमारे घर के एड्रेस पर वो पहुँचा। जैसे उसने मतलब जो भी पैसे थे मैंने घर पर जाकर ही दिए उसे और उसने जैसे मैं घर के अंदर गई तो मेरे अंकल मेरे बच्चे देखते रह गए और मेरे कि इससे क्या हुआ और मेरे ब्लड निकला था और मेरे हाथ और पैर में लचक-लचक के मैं चली थी। तो जैसे मैं थोड़ा अंदर आई तो मेरे हस्बैंड अंकल देखकर बोले क्या हुआ? मैंने जब बताया तो उन्होंने बोला कि चलो अभी इमरजेंसी
एमएनसी में, चलो एमएनसी में हम गए और हमने दिखाया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रुको, पूरी रात वहाँ पर रुकते रुके रहे। उसके बाद उन्होंने सब एक्सरे वगैरह सब क्या रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा-सा हेयर लाइन फ्रैक्चर आपके हाथ में दिख रहा है, आप कल जो है स्पेशलिस्ट के पास जाओ और जो है आज रात को हमने मेडिसिन पेन किलर दिया, बोला ये लेके घर जाके सो जाओ। तो मैंने ऐसे ही किया और फिर हमने अगले दिन उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि तो आप किस्मत से बच गए हो, आपके हाथ में लाइटली फ्रैक्चर है है हेयर लाइन, उसको बहुत ही ध्यान से रखना, तो वो बड़ा हो जाता है और आपको फिर 15 डेज़ जो है रेस्ट करना है, हाथ का ध्यान रखना है। तो मैंने ऐसे ही किया और मेरा हाथ और ये सब चीज़ें एकदम ठीक हो गई और मेरे दाँत हिलने लगे थे, खून निकलने लगा था और दाँत तो सब बिल्कुल ही ख़राब हो गए, लेकिन दाँत सब अपनी पोजीशन में वापस आ गए। बाद में धीरे-धीरे होंठ में कट लगी थी, वो भी ठीक हो गई और सब धीरे-धीरे ठीक हुआ। मैं गुरु पापा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था और मैं इस तरह से उन्होंने मेरा बचाव किया। इसके लिए गुरु पापा का बहुत-बहुत शुक्राना है। मैंने महामृत्यु जप किया, शायद वो मृत्यु का संकट ही था, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि घर पे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसके क्षमा चाहूँगी गुरु पापा कि मैंने मुझे मालूम नहीं था और मैंने घर पर वो किया। तो मुझे आपका हर मेरे शुक्राना है, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना और सभी पर अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग में गुरु पापा के पावन श्री चरणों में आज ही समर्पण करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरु पापा, संगत जी और सुमन जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कर देना। सबका भला करना गुरु पापा। नानक नाम चलती करा तेरे बाणे सदा भला, नानक नाम चलती करा तेरे बाणे सदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु पापा। सबका भला करना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी की महाराज की रहमतों का विख्यान असी शुक्राना सब चीज विख्यान करते हैं। रोज़ इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें होंदियां ने। गुरु जी महाराज ने सबसे पहले तो सानू पावरफुल बनाता। ये गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी रहमत थी। मैं आगे बहुत रोंदी सी, बहुत जरा सा नुकसान हो जाना, जब भी रोना, कोई काम ना बनना, जब भी रोना, बहुत रोंदी सी, बेअंत ही रोंदी सी। तो गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत पावरफुल बना दिया, क्योंकि मैं इसलिए भी रोंदी सी कि यानी मेरी छोटी सिस्टर है, हम एक ही घर थे, दोनों बहनें, दोनों भाई थे, दोनों बहनें थे। तो मेरी बहन 10 के साल के बाद ही विडो हो गई थी। बस उसके एक 7 साल का बच्चा था, एक 5 साल का बच्चा था। तो मेरी बहन विडो में भी हमने कहा कि चलती मैरिज कर देंगे। मेरी बहन की एज सी की 28 साल की, 28 थी एज सी की। तो मेरी बहन कहती नहीं भाई, मैंने वो नहीं करानी। 2 साल 2.5 साल बाद उसके बच्चे, वैसे कि मैं तो बच्चे बड़ी मुश्किल लिए है, मैं तो अपने बच्चों के साथ ही अपना गुजारा करूँगी। उसने मैरिज नहीं कराई। हमने कहा देख ले भाई, हम तो तुझे अपने बच्चे की तरह रख लेंगे, हमें तो कोई नहीं भी, कई बार तंगियाँ भी आ जाए, ये तो परमात्मा की कृपा है। वो कह लगे कोई बात नहीं, जैसी रोटी तुम खाओगे ऐसी मैं खा लूँगी, क्योंकि हमारी बहन अलग नहीं थी। वैसे जब हमारी मतलब सासू माँ से बीबी कहते थे अपनी बीजी अपनी सास नू, तो बीबी ने ना उसके साथ बनी नहीं थी, मेरी बहन की छोटी के साथ, क्योंकि वो छोटी एलर्जी सी, मैं अपनी जिम्मेवारी समझ के काम कर रही थी। तो उसने क्या कहा कि उसे कमरे में अलग कर दिया, तो उसे कुछ नहीं दिया। तो चल मैं चुपचाप रहूँ थी कि चल, मुझे बोलना भी बंद कर दिया था उन्होंने, तब भी मैं गुजारा करती रहूँ थी कि चल बहन कोई ना। उसके होते ना मेरे पैर बहुत लगे, मुझे बहुत मारते कूटते भी थे ना, तो तब भी वो रौला पा देती थी। मैं क्या कोई गल नहीं। बेचारी ने 10 साल अपना सुहाग लिया, 10-12 साल थे, उसकी 28 साल की उम्र थी जब वो विडो होगी। उसने क्या नाम 2003 में विडो होगी और 2021 में वो पूरी होगी, अपने आप ही मर गई विडो। अब इसके दोनों बच्चे कुंवारे, पर एक कनाडा में आ गई लड़की, मतलब उसकी मम्मी 30 अगस्त को पूरी हुई, तो ये क्या नाम 13 अगस्त को आ गई। और बच्चा इसका हॉस्टल में पढ़ा रहे थे, तो वो हॉस्टल में था चंडीगढ़, तो वहाँ पढ़ रहा था, जॉब भी कर रहा था। बहुत अच्छे दोनों बच्चे लायक है। मेरी बहन भी वैसे अलग नहीं कर रहा था, कुछ दिया नहीं था उसे घर से, तो फिर भी मेरे साथ वो खूब अच्छी रही। थे हमारा दोनों का बहुत प्यार था। मैं कहना चल गुड्डी का घर वाला नहीं है, जैसे गुड्डी कहेगी वैसे कर लेंगे। मेरी प्यार से बहन का नाम गुड्डी था। तो मैंने कहा चल गुड्डी जो तू करेगी ठीक ही करेगी, क्योंकि वो घर चलाती थी, मैं काम करती थी। तो मैंने कहा चल इसे यो ना महसूस हो कि मेरे घर वाला नहीं है या मेरे बाप नहीं आएगा। तो हमने अपने बच्चों से ज़्यादा, कभी मैंने अपने बच्चों की स्टडी इतनी बढ़िया नहीं करवाई जितनी उसके बच्चों की करवाई। सारा पिंड भी कह रहा कि बहुत पैसा लगाया, पर जो भी मंगा वो भी दिया, जैसे कुत्ता भी डोगी लेके दिता, उससे बहुत ही बच्चा सी। तो आज मैं बहुत अपने आप को बहुत गिल्टी फील भी कर रही हूँ। और सही भी मेरी बहन बीमार हो गई सी, पता नहीं उसे ब्लैक मैजिक कर दिया, क्या कर दिया। खूब पैसा था उसके पास, मैं ऐसे कह दूँ, खूब खर्च भी करती थी, पर मुझे नहीं पता था, वो मुझे अब अच्छा नहीं समझे थी।
तो दोनों बहनें मेरी है ना, मुझे अच्छा नहीं समझती, पर मैं कुछ नहीं बोलूँ थी। मैं कहा करूँ थी कोई बात नहीं, नहीं अच्छा समझती ना, आप अच्छा समझ, चल। मैं जाके वो मम्मी के पास चली गई थी। जब 1-1.5 साल बाद ही मम्मी के पास अलग घर रह के, मम्मी के पास ही मतलब मेरे मायके में ही अलग घर रह के छोटे से में उसमें रहने लगी थी। तो हमने ही ले दिया था वो ना, मकान हमारे नाम था, लेकिन ड्राइवर मेरी बहन थी। मैं उसे कहा करती, अगर मैं मर गई तो तुम मकान मत छोड़िए, घर से मत निकलिए, अगर तुझे कोई निकलवाएगा तो इस तरह ही गुरुजी महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया था, ये नहीं पता मेरे से पहले चली जाएगी। वो घर अब हमने उसके बेटे को ही दे दिया, हमने लिया नहीं, कि उसके पापा भी है नहीं और उसकी मम्मी भी है नहीं। तो गुरुजी की महाराज की कृपा से हमने उसे दे दिया। तो मुझे अपनी बहन का बहुत दुख था, पर मुझे बहुत रोया करूँ थी गुट्टी गुट्टी करके, यानी मुझे अच्छा नहीं समझा। मैं अपने इतना अपने बहन भाइयों का प्यार करती कि मुझे दुनिया में कोई नहीं दिखा था। मैं कहती मेरे बहन भाई वर्ग बहन भाई नहीं। और आज गुरुजी महाराज ने सबकी हैसियत दिखाई ना। एक तो मरी गई, उसके बाद ही गुरुजी महाराज, तो उसे 4 साल हो गए, 5वां साल लगा हुआ है मेरी बहन को। तो गुरुजी महाराज तो मुझे 24वीं मिले, पर जब से मेरा रोना बंद कर दिया गुरुजी महाराज ने, कि तू रोना नहीं बेटी, तू रोना नहीं। मुझे रोना बहुत कम आवे तो मैं बहुत पावरफुल बनाती। अब मैं इसीलिए कहूँ गुरुजी महाराज को कि मुझे जो मेरे से छूट गए वो मुझे मत जोड़ियो। अब मैं जोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जो तकलीफ़ां मैंने कटियाँ वो मुझे पता। और मैं गुरुजी महाराज ने मुझे इतना बल बख्शा कि उन्होंने मुझे रोना भी हटाया, उन्होंने मुझे पावरफुल भी बनाया, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि बेटी तू किससे डरना, तेरे साथ मैं खड़ा, मैं बैठा हूँ, इतना मुझे बहुत। तो मैं तो कहा करती गुरुजी महाराज, मैं तो गुरुजी बनाया आप जी को और गुरुजी ये बनाऊंगी। गुरुजी महाराज मैं आपकी शिष्य हूँ, जो भी गलती हो क्षमा करना। पर गुरुजी महाराज बहन भी मेरी मौके की बनोगी, अभी मेरा खत्म हो गया, वो तो दोनों जी खत्म हो गए। बच्चे, लड़की बाहर आई वो नहीं फ़ोन करती, ना लड़का फ़ोन करता, मुझे कोई अब टेंशन नहीं। पहले मैं यही रोती रहूँगी, हाय मैंने इसे इस तरह पाला और मैंने तो अपने बच्चों को भी नहीं संभाला ही नहीं संभाला। 4 बच्चों को मैंने एक से ही समझ के पाला, पर अपने को समझा दिया करूँ थी, मम्मी तुम इसका प्यार करो, हमारा नहीं करता, बेटा भी कहते बेटी भी कहते। मैं कहा पुत्र अपने बच्चों को सब प्यार करें, ये इनके मन में ये ना जाए हमारा आज डैडी नहीं हैगा तो हमें कोई पूछता नहीं। यार गुड्डी को ना हो कि मेरा आज घर वाला होता तो मैं भी अपने घर की रानी होती, पर मैंने कभी अपनी बहन से फ़र्क नहीं करा। ये तो भगवान जाना कि अगर मैंने कोई गलती करी भी होगी। पर जब मैं रिश्ता लेके आई ना अपनी बहन का, तो मेरे बापू जी ने कहा, कहने लगा पोते न्याणी है, चली जीती है। बहुत लाड़ लेते हम अपने घर में, बहुत लाड़ लेते। जितने हमने लाड़ देखे ना, उससे ज़्यादा हमने कई गुना दुख भी देखा। पर मैं रोना नहीं चाह रही, क्योंकि आज गुरुजी महाराज कहते पिछड़ा भूल जा और आगे कुछ संभाल दूंगा तुझे मैं, मेरा बुढ़ापा संभाल देंगे गुरुजी महाराज। बस यही कह रही कि बच्चों को खुश रखो, 2 ही बच्चे हैं। गुरुजी महाराज थे, मेरे बापू जी ने कहा कि तू इसका रिश्ता ले जा, पर इसको कभी छोड़िए ना। मैं कहा नहीं बापू जी नहीं छोड़ती, मैं अपने बापू जी को बहुत प्यार करती और मेरे बापू जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो सॉरी संगत जी, आज कहाँ से दिल भरे आया। तो मैंने मरती तक उसका साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो कैसे भी मेरे साथ लड़े थी। कई बार गुस्से में आके थप्पड़ भी मार देती, पर मैंने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। फिर मैंने जिस दिन पूरी होगी, मैंने अपने बापू जी को कहा, मैं बापू जी थोड़ी जिम्मेवारी आज खत्म होगी। बापू जी सॉरी संगत जी, दयाल की उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो चल कैसी भी थी मेरी बहन थी। तो गुरुजी महाराज अपने भनोइये का भी करा संगत जी, और उसका भी करा। किसी ने अच्छा तो नहीं कहा, पर मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत अच्छा करा। जिसका मैंने कभी कुछ करा ही नहीं था, वो तो मुझे अच्छा कह रही ना। तो संगत जी वाली बात है, रिश्तेदारी ना, अगला कहते रिश्ते 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 संभालो। जितना हमने अपने रिश्तों के लिए करा ना, शायद कोई नहीं कर सकता जितना मैंने अपने रिश्तों के लिए करा। नंदों का भी करा, नंद भी नहीं बनी, ब्याह के बाद में भी बदल गई, क्योंकि मेरी बीबी को सस माँ को ना फौज की पेंशन आवे थी, तो वो पेंशनों की मारी वे लड़ने लगी। मैंने नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे डैडी दिया, तुम्हारे पापा दिया, तुम्हारा हक है, कोई बात नहीं, ले जाओ, चाहे सारी ले जाओ, चाहे आधी ले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो अपने लड़ाइयाँ कभी ना लेन देन पे करी, मैंने नहीं कभी किसी से लड़ाई करी। मैं तो अपनी बहन से नहीं लड़ी, दोनों नंदे भी आई, दियोर भी आया आके, बड़ी थी मैं अपने घर की, अपने दियोर को अपनी बहन ले आई। बहन भी कभी कभी गुस्से हो जाती थी, तो मैं कहती चल कोई बात नहीं, छोटी है, आदमी नहीं है, किस पे गुस्सा दिखावेगी, मेरे पे दिखावेगी, उसका गुस्सा सुनने वाला भी कोई नहीं था। बच्चे भी आजकल के तुम्हें पता बहुत ख़राब है। तो गुरुजी महाराज बहुत अच्छे तरीके से, वो बीमार होगी तो उसका लड़का भी उसे देखने नहीं आया, नाले उसने अपने लड़के को इतना पैसा दिया, बेचारी ने इतना पैसा दिया, क्योंकि हॉस्टल में भी पढ़ाया और 10th के बाद CBSE पढ़ के वो गोविंदगढ़ चला गया, फिर चंडीगढ़ चला गया। मतलब 1-1 1.5 लाख रुपया साल का 2-2 लाख खर्च थी सारा दिन का। कहना मुझे नौकरी छट गई, मुझे नौकरी नहीं मिलनी।
तो मेरी बहन तरस गई अपने बच्चे का मुंह देखने। फिर हमने एक बार उसे कहा तू एक बार तो मिल जा, एक बार मिल जा। जब उसे कैंसर बता दिया था, मैं क्या गुरुजी महाराज मिले नहीं, तो कैंसर के हॉस्पिटल में लेके तो उसे एक दिन कहा कि तू एक दिन के लिए मिल जा, फिर हम संभाल रहे। पर भगवान की कृपा इतनी थी, गुरुजी महाराज उसे क्या नाम है, उसकी दिमाग की सारी बोलने की सारी यादगार बढ़िया थी। बस एक ही होता कि उससे चला कम जावे था। तो गुरुजी महाराज ये कृपा हुई आपकी, उसका छुटकारा हो गया। और वो जिस तरह की शरीर में थी, उसको बस एक यही सुना कि कैंसर है, और कुछ भी उसके यानी पैर में जख्म है या सिर में जख्म है या कोई परेशानी हुई सी नहीं, बहुत अच्छे। बस उसे 8-10 दिन में ही वो ख़त्म हो गई। तो गुरुजी महाराज का लड़का एक बार दे गया, फिर ख़त्म हुए पे मैं लुधियाने से अपने घर ले आई, ससुराल घर में। ससुराल घर में ला के मैंने उसे अपनी कोठी बनाई थी। अभी हमने अपनी कोठी का भी कुछ नहीं करा था, ना खंड पाठ वगैरह कोई शुभ, बस हवन करवा दिया था माता रानी का। तो कोठी चला के मैंने उसे अपने पिंड में दाग लगाया, क्योंकि पिंड में भी आई थी। तो उसका बच्चा मरी पे आया और 10 दिन वो रह के अपना चला गया। तो उसने बिहेवियर इतना गलत करा कि अच्छा नहीं करा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा इतना मन रोया करा, मैं दिन में 4-4 5-5 बारी रोया करा कि हाय मुझे छोड़ दिया, हाय मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूँ थी। इन्हें तो मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करा, इन्हें तो छोड़ना बहुत मुश्किल था। फिर मुझे गुरुजी महाराज ने अच्छी छोड़ दी। गुरुजी महाराज ने, मैं पागल हो जाती जब भी कहूँ कि गुरुजी महाराज एक तो घर बर्बाद हो गए, जब वही सब कुछ खत्म हो गया, और एक इधर से ये दुख हो गया। और इस करके मुझे बहुत दुख थे, बहुत दुखी जीवन में मेरी गुरुजी महाराज ने वहाँ पड़ी। गुरुजी महाराज जी आप जी का तहे दिलों सत्कार करते हैं। सुमन आंटी जी आप जी को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि शुक्राना है आप जी का। गुरुजी महाराज जी ये सत्संग में आप जी के श्री कमल चरणों में भेज रही हूँ, और आप जी ने ही सुमन आंटी जी को पहुँचाना है, और आप जी ने ही सुमन आंटी जी अपलोड करना है। मेरा सत्संग यहीं पे मैं कल को करूँगी नया सत्संग, और अब मैं दिव्य मंत्र जाप से ही समाप्त कर दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। है शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी। मैं कल को बोलूँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज कस के बाँ पकड़ियो, कभी भी हमारा हाथ और साथ न छोड़ियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा मेरे ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। शुक्राना ਤੁਸੀਂ करवा रहे हो तो मैं कर रही हूँ गुरु पा। एक दिन की हुआ कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, मैं मोबाइल अपना ठीक करवाना चाहती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा गुरुपा अब तो मैं नया भी नहीं ले सकती, जो मेरा नया था वो मेरा गिर गया था। पुराना मोबाइल ठीक करवा के मसा तो चला रही थी, वो भी उस दिन बंद हो गया। मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मगर आप ही मेरा फ़ोन ऐसे ही किसी तरह चला दो, अपनी कृपा करो कि मेरा फ़ोन चल जाए। आप मानोगे नहीं, 2 मिनट बाद ही मेरा फ़ोन वो चलने लग पड़ा। दूसरा एक दिन गुरुजी ने फिर मेरे को ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझ पे अपनी तू चिंता मत कर पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। जो तेरे पे कुछ कर रहे हैं उसको मैं काट दूंगा, काली क्रिया करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तेरी पुत्री की मैं नौकरी लगवाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि फिर एक दिन गुरुजी ने मुझ पे कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू सिमरन करती रह। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सुखमनी साहब का पाठ किया कर, और चौपाई साहब का पाठ किया कर, जपजी साहब का पाठ किया कर। गुरुपा वो आप मेरे से करवाते हो, सेवा लेते हो। गुरुपा फिर एक दिन कल मंदिर में मैं गई, शंकर जी के भगवान के मंदिर में जाती हूँ भोले बाबा के। वहाँ पे एक संत आए हुए थे, वो जो हरिद्वार से पैदल चले हुए थे, आपने मुझसे वो सेवा भी करवाई। गुरुपा मैं आंगनवाड़ी में जाती हूँ, स्कूल में हेल्पर लगी हुई हूँ। गुरुपा मैं बच्चों की सेवा भी आप मेरे से करवा देते हो, कभी कुछ दिलवा देते हो बच्चों को। गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप मेरी आंखों को भी ब्लेस कर रहे हो। गुरुपा मेरी बस आंखों की ज्योति ठीक कर दो। गुरुपा सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुपा कहते हैं तू टेंशन मत ले बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, दूसरा सत्संग लेके फिर जल्दी हाजिर होंगी।